Hello everyone. So today we are going to discuss about the types of plans. So in our last class we have discussed the various steps involved in the planning process. So in this video we are going to discuss in details about the various types of plans, which is very important for your exam purpose too. Okay. So first of all, student, you should know that what is planning. Planning means it is a decision making process in order to achieve the goals for future. Okay, but what is plan? So you can say plan is a document, is a kind of document with which we are going to achieve the goal. Okay, so generally types of plan, if anyone asks, so there are three types of plan. We can say that on the basis of hierarchy, or on the basis of use, and on the basis of flexibility. So like on the basis of hierarchy, you can get the corporate plan, then tactical plan, then operational plan. So on the basis of use, there are two kinds of plan. One is single use plan and standing use plan, and on the basis of flexibility, you can say that it is a specific plan and flexible plan. So student, as per your syllabus, you no need to go through all the plans. On the basis of use, the single use plan and standing plan are very important. So that is very important to know these things. So by the way, what is corporate plan, student? Always remember, corporate plan are those plans which are prepared by the top level management for the whole organization. Okay, then tactical plan are those plans which are prepared by the middle level organization, like various departments like marketing department, then production department. Okay, then operational plan means are those plans which are prepared by the lower level management. Okay, so this is on the basis of hierarchy, we can say that these three types of plans we generally see in any organization. Then the single use plan and standing plan. So although we are going to discuss in details, but you should know that single use plans are those plans which can be used only for once, okay, and only for one lifetime. You cannot use it again and again. Then the standing plan is just opposite of single plan. That means you can use it for more than one time. And then on the basis of flexibility, we can say that specific plan and flexible plan. The specific plan means which is specific, and flexible which means you can change it. So this is the types of plan. So now here we are going to discuss the very important point, which is standing use plan and single use plan. So student, first of all you should know the single use plan. Okay, तो single use plan क्या हो सकता है? Means ये ऐसा type of plan है which are made to serve a particular objectives. कुछ objectives को achieve करने के लिए generally क्या होता है planning में? Student, we generally set objectives, and in order to set those objectives we prepare plan. ओके, सो सिंगल यूज़ ऐसा टाइप ऑफ प्लान है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो एक बार प्लान बनाया जाता है उसको हम लोग सिंगल यूज़ प्लान बोलते हैं. दे फेल टू एग्जिस्ट वंस द ऑब्जेक्टिव्स अचीव. दैट मीन्स एक बार अगर वो एक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गया, जो जिस गोल के लिए हम जनरली द मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड द प्लान, so we cannot use the single use plan again. Okay, these are the short lived plans and are normally made for activities which are non recurring in nature, जो कि recurring nature में नहीं होते. ठीक है, वो short period के लिए बनाया जाता है. For example, here I would like to give you an example of single use plan like merger. Do you know what is merger? When two company join together. तो ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी तो हमेशा मार्जर नहीं करते रहते क्या? ये वंस इन ब्लू मून का भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया तो वो लोग मार्जर करते हैं, मार्जिंग करते हैं. तो ये सिंगल यूज प्लान है. ठीक है, देन दिस इज अबाउट द सिंगल यूज प्लान. देन ये सिंगल यूज प्लान में इसका बहुत सारा टाइप्स होते हैं, एंड टाइप्स आर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो एंड अगेन सी द स्टैंडिंग प्लान. तो स्टैंडिंग यूज प्लान इज व्हाट? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सिंगल यूज प्लान. इसको हम लोग रिपीट यूज प्लान भी बोलते हैं. डेट मीन्स ये ओवर एंड ओवर यूज होते रहते हैं. दीज आर द रिकरिंग प्लान्स यूज्ड फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. दैट मीन्स ये लाइफ टाइम तक चलते हैं. ठीक है, स्टैंडिंग प्लान्स आर मेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बार बार यूज़ करते ही रहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज इन एग्जाम यू मे ऑल्सो गेट you may be asked to write the differentiate between the standing plan and single use plan. So I hope you have understood very clearly that what is standing plan and what is single use plan. Okay,
सो रिमेंबर द सिंगल यूज प्लान मीन्स व्हाट, क्या था सिंगल यूज प्लान, जो कि एक बार यूज होता है. एंड स्टैंडिंग प्लान मीन्स क्या होता है, विच आर फॉर्मुलेटेड टू गाइड द मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस ऑन रिकरिंग प्रॉब्लम्स. जो रेगुलर बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जो रेगुलरली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लान यूज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्लान. Clear? Okay, in our next slide we are going to discuss about the various types of single use plan and standing plan. तो सी सिंगल यूज प्लान क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉइंट नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव्स. देखो ऑब्जेक्टिव्स भी एक टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ प्लान होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर वन टाइप ऑफ प्लान मीन्स उसको वो भी एक प्लान होते हैं कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन दिस ईयर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू increase its branch in 2 more cities. तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लान. ऑब्जेक्टिव्स तो ये भी एक प्लान होता है जो कि सिंगल यूज प्लान होते हैं. ठीक है, दीज आर द डिजायर्ड रिजल्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स ऑब्जेक्टिव्स कैन बी स्टेटमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. Okay, they are the end points towards which all activities are directed. You can say that objectives are the end activities. Means इसके बाद वो कुछ नहीं रहता, ये end activities होते हैं. इसको achieve करने के लिए planning सब करते हैं. ठीक है. Next point is strategy. So student, here I am going to give you some tactics so which you can understand. Strategy जब भी आएंगे दिमाग में, so you always remember strategy means what? इट इज़ कंपटीशन. तो कंपटीटर्स के साथ चलने के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसको हम लोग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं. ठीक है. सो स्ट्रैटेजी मीन्स देखो ऑब्जेक्टिव स्टेट दैट व्हाट टू अचीव, बट स्ट्रेटेजी स्टेट्स आस दैट हाउ टू अचीव. ऑब्जेक्टिव्स में जो सेट कर दिया कि ओके वी नीड टू इंक्रीज द सेल बाय 20% इन दिस पर्टिकुलर एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर financial year. So this is the objectives. It is a kind of plan, single use plan. But in order to achieve those objectives, you have prepared some strategy like marketing strategy, production strategy. Okay, so on while taking care of the care of your competitors कि उनका क्या strategy है, तो वो the strategy. Clear? It is an integrated and unified long range plan or set of plans regarding the deployment of organization resources to achieve the goals of the organization. Strategy ऐसे होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज यूज़ करते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सके. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज program. See student, program is now here there is a twist. Student may get confused between the programs and procedures, but first of all you should know the meaning of programs. Programs means क्या होता है, it is a concrete scheme of action worked out to provide guidelines to managerial activities. It is an action plan consisting of the sequence and timing of steps. Now what does it mean? See student, programs means क्या होता है, in sequence way पे one by one whatever the functions we have to perform, this is called the program. और क्लियर स्टूडेंट, प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइडलाइन भी होते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में. इट प्रेस्क्राइब्स हाउ एंटरप्राइज रिसोर्सेज शुड बी यूज टू अकॉम्प्लिश सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम लोग प्रोग्राम यूज़ करते हैं. देखो स्टूडेंट, इन योर स्कूल or in college generally you have to follow some programs rules एक one by one. Okay, first of all whenever you come to college क्या होते हैं, suppose first plus business studies हुआ, next plus accountancy हुआ, उसके बाद break. तो this one by one steps होते हैं ना. तो this is called the program. So any business management or any organization there should be some program and which is a standing plan. Okay, सॉरी सिंगल यूज़ प्लान जिसको एक बार ही यूज़ करते हैं. तो ये सीक्वेंस होते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो इंडिकेट्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन. इट यूजुअली सपोर्टेड बाय द बजट. नाउ व्हाट इज़ बजट? तो बजट के बारे में तो सभी को पता है. एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जहाँ पे मॉनिटरी एक्टिविटीज़ आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हाउ टू स्पेंड, वेयर टू स्पेंड आर कॉल्ड द बजट. तो जनरली इट इज स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. तो इसको बजट बोलते हैं. तो बजट भी एक बार ही बनाया जाता है और वो भी सिंगल यूज़ प्लान होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉलर बट special action plan which forms a distinct part of a program. It is a narrower than program. program में हम लोगों ने क्या देखा कि steps of there are lots of activities which we need to perform in a time sequence or timely manner.
तो प्रोजेक्ट क्या होते हैं, वो प्रोग्राम्स का एक स्मॉल पार्ट होते हैं, मान लो छोटा भैया होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, प्रोजेक्ट मीन्स एक्चुअली स्पेशल होते हैं, जो स्पेशल बट स्मॉलर एक्शन प्लान होते हैं। लाइक सपोज पर्टिकुलर काम के लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया कि इसको ऐसे किया जाएगा, ठीक है। देन विच फॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इट्स स्कोप्स इज ए नैरोअर देन दैट ऑफ प्रोग्राम जो इसका स्कोप है वो कम है, किससे, प्रोग्राम से कम है, ठीक है, प्रोजेक्ट से कम, उसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज standing plan. Now what is standing plan? Already we have discussed. The standing plans are those plans which are used by the organization again and again. So a policy, a guideline that help. So first of all standing plan का एक टाइप्स होता है पॉलिसी। तो स्टूडेंट डोंट गेट कन्फ्यूज हेयर, आई विल गिव यू वेरी शॉर्टकट ट्रिक्स जिससे तुम लोग समझ सकते हो कि इतना ये जो सारे के सारे पीस है तो कैसे इसको समझ में आ जाए। तो पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी गाइडलाइंस होते हैं मैनेजमेंट को जो हेल्प करता है अपना गोल अचीव करने में, ठीक है। जैसे कि लाइक वी ओनली डील विद द होलसेलर और वी ओनली डील ऑन क्रेडिट, ये क्या है, एक पॉलिसी है, ठीक है। तो पॉलिसी, आई होप यू अंडरस्टूड। सो वेट, सो पॉलिसी मीन्स क्या होता है, इट्स अ वर्बल, रिटन और इम्प्लाइड ओवरऑल गाइड सेटिंग अप बाउंड्रीज। एक बाउंड्री सेट कर देता है कि तुम्हें एक मैनेजमेंट को विद इन दिस सेट ऑफ बाउंड्रीज दे हैव टू वर्क, उसको हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड आंसर्स और डिसीजंस बट मेक्स एन अटेम्प्ट टू secure consistency in all the decisions made in the similar situation at different times, okay, जिसको हम लोग पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होता है, नाउ स्टूडेंट में गेट कंफ्यूज कि प्रोसीजर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। देखो प्रोग्राम क्या होता है, सारे के सारे एक्टिविटीज़ का कम्बिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर। प्रोसीजर्स क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्या स्टेप्स लिया जाएगा, ए सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क दैट मेड अप द कॉर्नोलॉजिकल सीक्वेंस एंड एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड, उसको हम लोग प्रोसीजर्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो प्रोसीजर्स में क्या होते हैं, जनरली इट इज़ वेरी एसेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्व इन डूइंग डिफरेंट जॉब्स। हर जॉब करने के लिए कुछ तो स्टेप्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू परफॉर्म, तो वो क्या होते हैं, वो प्रोसीजर में आते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर कैन बी सेट अप फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, हर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। दे आर क्वाइट परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग क्या है, हर जगह पे होता है। लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट भी अपना प्रोसीजर्स बनाते हैं, लाइक मिडिल लेवल भी करते हैं एंड लोअर लेवल भी करते हैं। कवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर्स आर जनरली सेट अप फॉर processing orders, transporting of goods, handling claims, like collection of means जो भी बिजनेस में जितने भी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर्स करते हैं, उसको स्टेप्स को जनरली प्रोसीजर्स बोलते हैं, जो कि स्टैंडिंग प्लान होते हैं, उसको बार बार यूज़ होते हैं। नेक्स्ट मेथड। नाउ मेथड से क्या पता चलता है, मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टैंडिंग प्लान। याद रखना फॉर्मूला, ओके, क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लाइक इन स्कूल वी यूज टू डू लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, उसको मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेथड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एक इट इज़ अ प्रेस्क्राइब वे ऑफ एक फॉर्मूला, ठीक है, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ वे ऑफ कंप्लीटिंग ए स्टेप इन ए प्रोसीजर। प्रोसीजर जो होते हैं ना, लाइक प्रोसीजर में क्या सिखाता है कि स्टेप होते हैं, कि क्या स्टेप करेंगे, तो वो स्टेप में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दस मेथड्स लीड्स टू ए स्टेप इन द प्रोसीजर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर एक मेथड्स क्या होते हैं, एक स्टेप होता है। प्रोसीजर में तो बहुत सारा स्टेप होते हैं ना, कि ये स्टेप करो ये स्टेप करो, तो एक एक स्टेप को हम लोग मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर क्या होते हैं, द साउंड मेथड्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन परफॉर्मिंग द टास्क, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोसीजर। तो अगर मेथड्स अच्छा हुआ तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर का यूजफुल तभी अच्छा होगा अगर मेथड्स अच्छा हुआ तो, ठीक है। देयरफॉर मैनेजर्स आर ऑलवेज इन सर्च फॉर बेटर, इम्प्रूव्ड, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एडेड एंड सिंप्लीफाइड मेथड्स। क्लियर, दिस इज अबाउट द मेथड्स। नेक्स्ट रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, लाइक obviously discipline you can say, so it may be very specific or to the point. Detailed guide to the managerial action. Rules are intended to be followed precisely and observed strictly. That means कुछ rules होते हैं ना, like
एक जैसे कि स्कूल में भी तुम कॉलेज में भी यू शुड मेंटेन द डिसिप्लिन प्रॉपर, नो स्मोकिंग जोन, तो दिस इज़ द रूल्स. तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उसको दीज आर विच आर जनरली यूज again and again, okay, over and over time. So rules may be said to be very specific, as I already told you. Rules helps in regulating the behavior of the people. एक organization में अगर you want to maintain the behavior of the people, then you need a proper rules, okay. And see, the policies and rules have common features और similarities. Policies में भी common features होते हैं, rules में भी common features होते हैं, but they are different. पॉलिसी क्या होते हैं, एक बाउंड्री होते हैं जिसके अंडर में ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है, वो अपना मीन्स गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं. बट रूल्स क्या होता है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट में जो पीपल है दे आर वर्किंग. क्लियर स्टूडेंट? तो I hope you have understood. So in our next video we will discuss in details about some of the plan, like policies and procedures, which are very important for your business studies exam purpose too, okay. So I hope you have understood. So this is all about today. If you have any doubt, you can